Welcome to ACM classes. Today we're going to talk about general test exam for CUET. If you are preparing CUET this year and you have general test in your exams, then do watch this video till the end because we're going to explain you the level and the pattern which happened in 2024, and that same pattern was there in 2025 also. So 2025 की वीडियो already हमारे चैनल पर है. 24 also going to give an insight to you. Let's begin with it. अब 2025 में तो यू हैव 60 मिनट्स, 2026 में भी 60 मिनट्स, 2024 में भी 60 मिनट्स थे. टोटल मार्क्स तीनों साल में 250 मार्क्स हैं. टोटल क्वेश्चन जो है अब इस साल लास्ट ईयर 2025 में 50 थे ऑल कंपलसरी. अब आपको भी 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं 2026 में. द टाइम इज स्टिल द सेम 60 मिनट्स एंड आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं. सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं. जो 2024 में चॉइस था अब वो बच्चों के पास नहीं आता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. वी कैन नॉट सॉल्व रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स पार्ट, द क्वांटिटेटिव पार्ट फॉर यू गाइस बिकॉज दैट इज समथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड. रेस्ट जीके इज ऑल अबाउट लर्निंग इट, सो एवरी ईयर इट गेट्स चेंज्ड. बट द पैटर्न जो होता है रीजनिंग और क्वांट का लेवल समझ आना चाहिए, पैटर्न समझ आना चाहिए, सो वी कैन ईजिली टेक केयर ऑफ दिस ईयर exam also. Now the first question that is from quant, that is sin a is equal to 4 by 5, then 3 minus tan a 2 plus cos a is equal to what. Now ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री याद होगी आपको. उसमें हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू लर्न इट लाइक एंड वी यूज टू टीच इट लाइक पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी भोले सोना चांदी tole. So there is a denominator perpendicular by hypotenuse, base by hypotenuse, perpendicular by base. We are talking about a right angle triangle where we have this is the angle theta, this is hypotenuse, this is perpendicular, and this is the base. So S stands for sine, C stands for cosine, and T stands for tangent. Sorry, tan. So that now we have the information with us. तो अगर मुझे sin A बोला गया, that means P is 4 and h is 5. Now as per Pythagoras theorem, Pythagoras said hypotenuse square is equal to b square plus perpendicular square. So we can easily derive the b square, or b is equal to square root of h square minus p square. Now hypotenuse क्या है? Hypotenuse that we have, that is 5 का square 25, p is 4 का square 16, square root of that is square root of 9, that means base is 3. Now if I have to find out the value of 3 minus tan a, now tan a is there, basically we're talking about this particular point. So a is tan p by b, now p is 4 and b is 3, that is 3 minus 4 by 3 multiplied by 2 plus cos a, cos is b by h, so b is 3, h is 5, that is 2 plus 3 by 5. So what do we get actually? We get 3 minus 4 by 3, the 3 is the LCM. We get 9 minus 4, that is 5 upon 3 multiplied by, this is LCM is 5, and here we get 5 into 2, 10 plus 3, 13, 5 gets cancelled. So the answer comes out to be 13 upon 3, and that is the answer we have in the option number 2. So this was a basic question from class 10th. If somebody knows the trigonometry topic, they could easily do it. Number 2, हम यहाँ पे करवाते हैं, of course we revise. हम जब आपको अपना material देते हैं उसमें trigonometry का chapter भी हम notes आपको provide करते हैं, and this kind of questions we can be easily taken care from there. Next, let's go to the question number 5. This is again from the speed, time and distance topic है, and that is again from the quantitative aptitude. A man can row a boat at 8 km per hour in still water. Let's say this is the water and there is a boat running up, and the speed of boat, that is 8 km per hour, and the current of the river, let's say that also flows in the same direction, that is 2 km per hour. Then it takes him 2 hours to row to a place and come back. So he's going from point A and going to point B. So when he goes from point A to point B, in that case he takes 2 hours. When he takes 2 hours, what does it mean? जाते हुए जब उसकी speed कितनी होगी? If you guys remember downstream speed and upstream speed का concept,
द डाउनस्ट्रीम स्पीड, जब बोट्स और रिवर्स दोनों सेम साइड पर चलती है तब हम उनको ऐड कर देते हैं, मतलब 8 + 2 10 किलोमीटर पर आवर। और जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, द अपस्ट्रीम स्पीड वी कॉल इट 8 - 2 6 किलोमीटर पर आवर। सो वी गेट आर डाउनस्ट्रीम स्पीड दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, वी गेट आर अपस्ट्रीम स्पीड दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ डिस्टेंस जो मुझे जाना है, एक बार जाना है डाउनस्ट्रीम और एक बार आना है अपस्ट्रीम। अब डिस्टेंस तो सेम है, so a basic formula which we have for our distance, speed and time we know is distance upon speed. So now in this particular question what I can do, the distance, let's say d, downstream when we are going, that is 10, and when we are coming up upstream, that is 6. This should be equal to 2 hours because they said it takes 2 hours to come. So time is equal to distance upon speed. पहले हम A से B जाते हैं डाउनस्ट्रीम, फिर B से A आते हैं अपस्ट्रीम। दैट मीन जाते हुए स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, वापस आते हुए स्पीड है हमारी 6 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम में जाने का टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम का स्पीड, अपस्ट्रीम में आने वापस आने का टाइम आ जाएगा, दोनों मिला के 2 है। नाउ इफ आई टेक LCM, द LCM कम्स आउट टू बी 30, दिस गिव्स मी 3D plus 5D is equal to 60. That means 8 of D is equal to 60. That means D is equal to 7.5. So distance which they have asked, that is the answer 7.5. Quite simple question, बहुत easy है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको हमारी बुक्स में, हमारे नोट्स में, हमारे असाइनमेंट से मिल जाते हैं। एंड if you guys would like to see this chapter in detail, of course we are available for you. You can let us know in the comment section, we'll give you the link also, and you guys can check that on our channel also. Let's go for the next question. Now next question has again now of GK. So next 15-20 questions of GK current affairs, so please go ahead and do that for sure, because GK also comprises a major part in your exam. In 2025 when I saw the exams, तो वहाँ पर GK बहुत ज़्यादा नहीं था, quantitative aptitude बहुत ज़्यादा था, reasoning कम था। 2024 में it was evenly distributed with GK has a big higher margin. So let's go ahead. Now question number 28, it's of reasoning now. Topic का नाम है series, alphanumeric series. It says A1X B4P E25J J100F. What should come in the place of question mark of the following alphanumeric series? अब देखो, हम जब आपको सिखाते हैं तो उसमें हमें सीक्वेंस देना होता है। जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं लेफ्ट टू राइट वी पुट देम अ नंबर, एंड ऑन दैट नंबर्स इफ आई सी A is 1, X is 24, P is 16, B is 2, E is 5, J is 10, J is 10, F is 6. Now if I look at the numbers only, I can see 1, 4, 25 and 100. Now what are they? 1 ka square, 2 ka square, 5 ka square and 10 ka square. 1, 2, 5 and 10. Now how they are coming up? Let's understand that, break them in equal parts. सबसे पहले हम फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को ले लेते हैं A, फिर है B, फिर है E, फिर है J, and next we have to find out. So we'll eliminate. तो A मेरा 1, B मेरा 2, E is 5, J is 10. Now what is happening here? I can see this is +1, +3, +5. Next should be +7. That means 10 + 7, 17 should be the first letter, that is Q. Options में फर्स्ट ऑप्शन में O है, that is not the answer. सेकेंड ऑप्शन में O है, that is also not the answer. ठीक है। अब एक और चीज़ नोटिस करें, मैंने बोला A 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, सो दैट इज 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जो E है वो 5 है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 है, यहाँ J 10 होता है तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 है। तो जब मेरा Q 17 होगा तो उसके बाद आंसर क्या आएगा? 289। ना यहाँ पर 225 है, दिस ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड, दैट मीन द आंसर आई एम गोना गेट Q 289D। सो अगर आप एलिमिनेशन करते हो you guys can easily get the answer. Very simple it was. Q 289D, that was the answer I had. Let's go to the question number 229. This is the question of alphabet analogy. So this is alphabet analogy. Negi NEGI is to MBTR. इसमें ये टॉपिक ये कहता है कि ये फर्स्ट और सेकंड जो वर्ड या अल्फ़ाबेट या कोडेड कोड्स हैं ये कुछ आपस में रिलेट करते हैं, हमें वो रिलेशन फाइंड आउट करना है, उसी बेस पर हमें
आंसर निकालना है. नाउ इफ आई चेक नेगी एंड MVTR, let's write it separately. Now NEGI and here we have MVTR. जब भी हम एनालॉजी करते हैं, अल्फाबेट्स के साथ खेलते हैं, मैं आपको हमेशा 3 रूल्स बताता हूँ, रूल 1, 2 एंड 3. तो रूल 1, 2 एंड 3 में रूल नंबर 3 यहाँ हमारा जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है. कैसे हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. फॉर दैट वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द नंबर्स. जो भी इनके नंबर्स है कैसे आ रहे हैं, दैट इज अ सीक्वेंस नंबर दे हैव, ABCDEFGH. N is 14, E is 5, G is 7, I is 9. Now M is 13, V is 22, T is 20 and R is 18. Now ये नंबर्स अगर हम बात करें, इफ आई ऐड दीज नंबर्स, आप चेक करो हर बार टोटल 27 बनता है. Now this 27 we call them a complementary pair. Why complementary, ये भी समझाया हुआ है मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर, या जब हम ज्वाइन करते हैं और लाइव क्लास में समझाते हैं हम आप लोगों को. ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 27 जो है, हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर आप चेक करो n जो है लेफ्ट से 14 है तो m राइट से 14 होगा. e अगर लेफ्ट से 5th नंबर पे है तो v राइट से 5th नंबर पर होगा. g अगर लेफ्ट से 7 है तो t जो है वो राइट से 7th नंबर होगा. So that means they are complementary to each other. One is from left, other is from right. So the same logic we have to apply to Sing. Now Sing S is 19 and total has to be 27. That means 19 and 8. So I should start my answer with H. Now H only is in the 4th option. That is my answer straight away. मुझे इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है. That gives me the answer right away and that is how we can solve the questions quickly. So the answer is HRMT. अगर मैं पूरा सोल्व करना आपको दिखाऊं, I 9 होता है, 9 and 18 that is R. N मेरा 14 होता है, 14 and 13 27 that is M. And G is my 7, तो 7 and 20 27. बिकॉज जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है उनका टोटल हमेशा 27 आएगा. एक रैंकिंग का टॉपिक होता है, जब हम वो समझाते हैं तब भी इस कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है. सो दैट्स हाउ द कंप्लीट आंसर कम्स. बट एग्जाम में अगर बैठे हैं तो वी कैन एलिमिनेट और इमीडिएटली, जैसे हमने पहले फटाफट आंसर टिक कर दिया, करके अगले क्वेश्चन में चल सकते हैं. डन. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 30th. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज की, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं वर्ड सब्सटीट्यूशन, सेंटेंस कोडिंग का काइंड ऑफ. इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज की रू पी मीन्स नोबडी लाइक क्रूअल. Ki mi cha means king was cruel and Rupi cha means nobody like king. Now codes है, अलग लैंग्वेज है, we don't know that. लेकिन ह्यूमन ब्रेन हमारे पास है. ह्यूमन ब्रेन हमारे पास है, we can easily understand what is the code, how is the codes are being made. Now मुझसे पूछा गया कोड फॉर वॉज बताओ. अब वॉज मुझे सिर्फ इतना चेक करना है, क्या ये वॉज जो है ये सिर्फ एक ही बार ऊपर सब इंग्लिश लैंग्वेज में आया है, बिकॉज इंग्लिश तो पढ़नी आती है मेरे को, या फिर ये वॉज बार बार रिपीट हो रहा है. I just need to identify a pattern. Now if I see in my English, nobody like cruel, was is not there, king was cruel, king यहाँ was यहाँ पर आया हुआ है, and nobody like king, मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक कोड was का होने वाला. कॉरस्पॉन्डिंग नहीं मानना, ध्यान रखिएगा, हमेशा बताता हूँ मैं, कॉरस्पॉन्डिंग आंसर गलत भी हो सकता है. नाउ अब मुझे ये चेक करना है, was अगर एक बार आया तो वो कोड भी एक ही बार आएगा, चाहे वो की है, चाहे वो मी है, चाहे वो छा है. इफ आई फाइंड की यहाँ पर आया हुआ है and cha is here, that means की और छा तो मेरे आंसर नहीं हो सकते. की भी आंसर नहीं होगा, छा भी आंसर नहीं होगा. the answer I have is me, so that is the answer I get straight away. the option number 2 is my answer. ये पार्ट है हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का, सेंटेंस कोडिंग बोलते हैं हम इसको. Any doubts you guys get, please write in the comment section and do subscribe the video so you guys can know about the other patterns, other past year actual question papers also, because we'll keep on uploading it as soon as we'll get some time. चाहे उसमें नार्सीबोंजी हो, उसमें IPU हो, those also we'll upload. and CUT के of course और आने ही आने हैं, because that's what we trying to help you online right now. Next, number 31. It is from the blood relations. Now blood relation में टॉपिक में हम आपको एक फैमिली ट्री बनाना सिखाते हैं. ना फैमिली ट्री क्या होता है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक है. अब उसमें 2-3 शॉर्टकट्स भी हैं, तो हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज वी विल सी हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट इन अ लॉगर वे, लॉजिकल वे भी करते हैं. सो मुझे पूछा गया, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन. तो P परसेंटेज Q मतलब P इज द सिस्टर ऑफ Q, P प्लस Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q, P इंटू Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P माइनस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q. तो मतलब जो मेरा फर्स्ट लेटर है उसका जेंडर मुझे यहां से समझ आ जाता है. मेरा फर्स्ट हिंट होता है जेंडर.
विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द सन इन लॉ. नाउ दैट मीन्स ए मेरा मेल होना चाहिए यहां पर. ना प्लस का साइन वी आर यूजिंग फॉर अ मेल, यू कैन यूज प्लस माइनस वट एवर यू वुड लाइक टू. तो ए इज द सन इन लॉ ऑफ जी, मतलब जी इनके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ होनी चाहिए. जी के जेंडर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बट ए का जेंडर मेल आना चाहिए. नाउ ए इंटू हस्बैंड हो सकता है ए प्लस एस, ए इज द सन, ए भी मेल है यहां पर. ए माइनस एस, पी इज द ब्रदर, ए माइनस एस, ए इज द ब्रदर, ये भी हो सकता है. ए इंटू यू, दैट मीन्स ए इज द हस्बैंड, ये भी हो सकता है. तो ऑप्शन जेंडर के बेस पे, जो हमारा पहला एलिमिनेशन टेक्निक है, जेंडर के बेस पे कुछ भी इसमें आउट नहीं हो रहा है. सेकंड जो क्राइटेरिया होता है वो होता है जनरेशन का. नाउ जनरेशन में हमें ये चेक करना है कि जो मदर इन लॉ है, सन इन लॉ है, ये इन लॉज फैमिली के अंदर है, तो एक ही जनरेशन का गैप आएगा और इन लॉ साइड पे आने वाला है. नाउ ए इंटू यू, ए से लेकर जी तक जाना है. ए इंटू यू, ए जो है दैट इज द हस्बैंड ऑफ यू, यू प्लस एस, यू इज द सन ऑफ क्यू. नाउ ए अगर हस्बैंड है, यू उसकी वाइफ होगी, और यू उसका मतलब मेल होना नहीं चाहिए, यू तो फीमेल है, बट प्लस का साइन कहता है कि पहले वाला मेल है, मतलब यहां कॉन्ट्रडिक्शन है यू के जेंडर के ऊपर, ये मेरा आंसर नहीं होगा. ठीक है. ए प्लस एस का मतलब है ए इज द सन. मुझे सन इन लॉ चाहिए इन लॉ फैमिलीज के अंदर, तो मैं इसको अभी सोल्व नहीं करूंगा बिकॉज ये बेटा बनकर आ रहा है. ये सन बन सकता है, ब्रदर बन सकता है, बट सन इन लॉ बनने के चांसेस के कम है. ए माइनस एस, दैट इज ए इज द ब्रदर ऑफ एस, इसको भी सोल्व नहीं करूंगा. ए इंटू यू मेरे पास है, जहां पे ए हस्बैंड है यू का, और यू का रिलेशन आगे डिफाइंड है, तो यू के मम्मी पापा अगर जी बन जाते हैं तो ए ऑटोमेटिकली मेरा सन इन लॉ बन जाएगा. तो ए इंटू यू, आई सोल्व दिस फर्स्ट. ए मल्टीप्लाई बाई यू, दैट मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ यू, तो हम इसको एक ऐसे डिनोट करते हैं, ए हस्बैंड हो गया, सिबलिंग स्पाउस के लिए यू हो गया. यू परसेंट एस, यू इज द सिस्टर हो गया, ये जेंडर मैच हो रहा है. एंड एस प्लस जी का मतलब है एस जो है सन है किसका, जी का, तो जी मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं एस के, और एस और यू दोनों भाई बहन है. एस इज द ब्रदर, यू इज द सिस्टर ऑफ एस. जी के दोनों बच्चे हैं और ए उनका दामाद है, मतलब ए जी का सन इन लॉ है. ऑप्शन नंबर 4 दैट मेक्स एब्सोल्युटली सेंस. तो अब चारों ऑप्शन सोल्व करने पे जाओगे तो टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है. हमने चारों ऑप्शन सोल्व नहीं करने, हमने दोनों अपने रूल यूज करने हैं. पहला जेंडर के बेस पे हमने आंसर निकालने की कोशिश करना है, दूसरा हमें जनरेशन के बेस पे आंसर निकालने की कोशिश करनी है. तो हमें सारे सोल्व नहीं करने पड़ते हैं, वी सेव आवर टाइम. ये टेक्निक आपको एग्जाम में यूज करनी होती है. नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 32. If 26th January 2020 was a Sunday, then what day of the week was it on 16th March of the year? So this is the question from the calendar. कैलेंडर का एक टॉपिक है आपका, रीजनिंग के अंदर भी आता है, मैथ्स के अंदर भी आता है, क्वांट के अंदर भी आता है. ये टॉपिक भी आपकी बुक्स के अंदर है जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको. 26 जनवरी 2020 was a Sunday. What day of the week it in 16th March of that same year? तो ईयर तो सेम है, जनवरी से जाना है मार्च तक. अब जनवरी में 26 जनवरी आ चुकी, वो संडे है. करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है. मुझे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज निकालने होते हैं. पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट अभी सिर्फ एग्जाम सोल्व कर रहे हैं तो ब्रीफ में करने वाले हैं. 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, जनवरी में 5 दिन बचते हैं, +5 एक्स्ट्रा डे ले रहा हूं मैं. ठीक है. फरवरी के अंदर 2020 लीप ईयर है, 29 डेज होंगे, तो 4 वीक्स एंड 1 डे, तो 1 डे वहां से एक्स्ट्रा उठा लिया मैंने. वीक्स मुझे नहीं चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ डेज होते हैं, हर 7 दिन बाद डे रिपीट होता है. वीक्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेज चाहिए. पूरा कंसेप्ट वीडियोस में अवेलेबल भी है एंड आई कैन टीच यू ऑन द इन द लाइव क्लासेस ऑल्सो. नाउ व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 16th मार्च. अब 16th मार्च का मतलब है 2 हफ्ते और 2 दिन, 2 वीक्स एंड 2 डेज, तो +2 ये भी आ जाएगा. टोटल हो गया +8 डेज. +8 डेज का मतलब है 1 हफ्ता और 1 दिन, 1 वीक एंड 1 डे. मतलब एक्चुअल में मुझे सिर्फ 1 डे आगे जाना है. संडे के बाद नेक्स्ट डे होता है मंडे. दैट मीन द आंसर टू दिस क्वेश्चन गोना बी मंडे. दैट इज द आंसर आई हैव. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू गाइस. ठीक है जी. कैलेंडर का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सिम्बियोसिस वाले भी इस टॉपिक को जरूर डालते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर आजकल, काफ़ी टाइम से, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 11-12 ईयर्स वी आर इन द सेम मार्केट. ऑनलाइन बस अब शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए ऑन द यूट्यूब स्पेशली. नंबर 33. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्लॉक. What will be the measurement of the angle made by the hour and minute hand of a clock when the time is 3:15? अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये टॉपिक है आपका क्लॉक का. क्लॉक के टॉपिक में जब हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इन दैट केस एक तो फॉर्मूला दिया जाता है और एक लॉजिक बताया जाता है. इस क्वेश्चन को लॉजिक से किया जा सकता है. आपको मालूम है पूरी की पूरी जो
आर एंड अगर बात करूं पूरा का पूरा एक सर्कल वो पूरा करता है 1 आवर के अंदर। सो 1 आवर में वो आर एंड जो हमारा है पूरा 360 डिग्री मूव कर जाता है। और अगर हम बात करें मिनट हैंड की, मिनट हैंड 1 आवर में मूव कर जाता है और जो आर एंड है वो मूव करता है 12 आवर्स में। ठीक है, अब जो मिनट हैंड है अगर 1 आवर में 360 डिग्री मूव करता है तो जो आपकी मिनट 1 मिनट में वो कितना मूव करेगा, 360/60। तो मिनट हैंड मूव करता है 1 मिनट में 6 डिग्रीज। और वहीं अगर हम बात करें आर एंड की, आर एंड मूव करता है 12 आवर्स में 360, मतलब 1 आवर में 360/12 30 डिग्रीज, और 1 मिनट में 30/60 1/2 डिग्रीज। सो दिस इज बाय आर एंड एंड दिस इज बाय मिनट हैंड। अब टाइम देखो कितना हुआ, दिस एट 3:15, मतलब 3:15 हो चुके हैं। ठीक है, अब 3:15 मतलब 3, अगर मैं क्लॉक की बात करूं यहां पर 12 है, यहां पर 3 है, तो आर एंड जो है मेरा थोड़ा सा इससे आगे होगा, मिनट हैंड बिल्कुल यहां होने वाला है 3 के ऊपर। तो आर एंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल पता करना है। आर एंड कितना मूव हुआ, 3 आवर्स, 1 आवर में 30 डिग्री होता है, दैट मीन्स 90 डिग्रीज। और 15 मिनट्स, 15 मिनट में कितना जाएगा, 15/2। ठीक, माइनस, अब मिनट हैंड कितना जाता है, मिनट हैंड हो गए 15 मिनट, 15 × 6, 15 × 6 90, सो दैट इज 90 डिग्री। मिनट हैंड गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, आई गॉट द आंसर एज 15/2 डिग्रीज। द आंसर इज 7.5 डिग्री। सिंपल शॉर्टकट माइंड में भी कर सकते हो करना चाहो तो। एग्जाम में बैठे हैं 3:15 बजे, 3:15। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी, इफ आई टॉक अबाउट 3:15 पे क्या होगा, 3 × 30 90, 97.5 आर एंड, मिनट हैंड 15 × 6 90, 97.5 माइनस 90, डिफरेंस इज 7.5 डिग्रीज। ओरल भी किया जा सकता है, सिर्फ समझाने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ बताना पड़ा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हमारे साथ ऑलरेडी अलाइंड हो, ज्वाइंड हो, तो आपके लिए बच्चों वाला बात है इस क्वेश्चन को करना। आगे चलते हैं, नंबर 34 अगेन कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है आपके पास। इन अ सर्टेन कोड मर्करी इज कोडेड एज NGUGZXF। तो एंटेंगल कैसे लिखोगे ना, मर्करी को अगर मुझे लिखना है तो लेट्स फाइंड आउट कैसे लिखा गया है। MERCURY एंड हेयर वी हैव NGUGZXF। अगेन रूल नंबर 3 चलेगा इसमें, रूल 1 और 2 नहीं काम आने वाला इसमें, बिकॉज एंटेंगल जो है दैट इज अ वर्ड वी हैव टू फाइंड आउट। तो नंबरिंग अगर करें 13 14 5 7 18 21 3 7 21 26 18 24 25 एंड 6। अब देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले ऐड हुआ +1, फिर ऐड हुआ 5 + 2 7, फिर ऐड हुआ 18 + 3 21, फिर ऐड हुआ +4 एंड सो ऑन। मतलब जो भी उसका सीक्वेंस है वर्ड अल्फ़ाबेट का, उतना ही उस नंबर को आगे मूव कर दिया गया। तो एंटेंगल में सबसे पहले ई का बनेगा F, एन का बनेगा OP, एक स्किप करके +2 हो गया। अब ऑप्शन में अगर मैं जाऊं, सब में पहले F आया हुआ है, तो एलिमिनेट अगेन हमने एलिमिनेट करना है, फिर सब में P आया हुआ है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट है थर्ड लेटर पे, अब थर्ड लेटर है T20, तो 20 + 3 दैट मीन्स 23। नाउ 23 का मतलब हो गया W, राइट। तो अब जो मुझे एंटेंगल का मतलब निकालना है, सो 23 का मतलब हो गया W, तो आंसर होगा W, दैट मीन्स X वाला आंसर नहीं होने वाला, दिस इज क्लियर कट, नो। फिर उसके बाद यहाँ पर E और F, तो फोर्थ में भी मुझे चेंज करना है ना। A होता है 1, द फर्स्ट लेटर विच वी हैव, तो 1 + 4 5 बनना चाहिए, बिकॉज फोर्थ नंबर पे आया। फिफ्थ पे आता है E, तो F वाला आंसर नहीं होगा, ये भी आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पर S और T, ये भी आउट हो गया। यहाँ पर S, यहाँ पर S, यहाँ पर N, यहाँ पर M, तो थर्ड लास्ट नंबर दैट इज G, 1 2 3 4 5 6, तो G का नंबर है 7 + 1 2 3 4 5 6, 7 + 6 13 पे होता है M, दैट मीन्स M वाला मेरा आंसर होगा, N वाला मेरा आंसर नहीं होगा। तो एग्जाम में आप एलिमिनेशन से करो, टाइम बच जाएगा, दैट गोना हेल्प अ लॉट। तो आंसर हो गया मेरा 34th का ऑप्शन नंबर 2।
आगे चलते हैं 35. The problem below consists of a question and two statement number 1 and 2. You have to decide whether the data provided in the are sufficient. Sufficient data sufficiency का क्वेश्चन है. डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, आपको ये चेक करना होता है कि एक यूनिक आंसर निकालना है. यूनिक आंसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. यूनिक आंसर निकालने के लिए आपको इनमें से एक स्टेटमेंट चाहिए, दोनों चाहिए, या दोनों में से कोई भी एक दे दो चल जाएगा, या दोनों से काम नहीं बनता. मुझे एक यूनिक आंसर चाहिए. क्वेश्चन है मेरा, हाउ मेनी सिस्टर्स डज सनी हैव. तो मेरा नंबर आना चाहिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो पहली बार में बोला गया, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है सनी इज द ओनली सन. ओनली सन का मतलब ये नहीं है इकलौता बच्चा है, इसका मतलब है इकलौता बेटा है. बहनें 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं. तो पहली स्टेटमेंट से मेरा आंसर नहीं निकलेगा. स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट. अब इसको भूल जाओ, स्टेटमेंट 2 पे आ जाओ. सनीज पेरेंट्स हैव 3 चिल्ड्रन. 3 चिल्ड्रन है, लेकिन उसमें से भाई कितने, बहनें कितनी नहीं पता. इससे भी आंसर नहीं निकलता. अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, सनी के पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, सनी और उसके 2 भाई बहन. सनी ओनली सन है, मतलब वो अकेला बेटा है, बाकी 2 बहनें हैं. तो मेरा आंसर आ जाएगा 2. दैट मीन्स अगर दोनों लाइंस को कंबाइन कर दिया जाए तो मेरा यूनिक आंसर निकलता है. तो मेरा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. दिस इज द टॉपिक ऑफ डेटा सफिशिएंसी. इट्स अ टॉपिक इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. नेक्स्ट 36. नाउ ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन डिस्टेंस का. Just give me 1 second. So 36th question we are talking about. This is about direction and distance. Now this question says a boy leaves his house. He travels 6 kilometers towards south and travel 8 kilometers towards west, and further travels 9 kilometers towards south. How far, in which direction is he from his house now? So let's start making it. Let's say this is the boy, and he went first of all 6 kilometers to the south. Then he went 8 kilometers towards the west. अब मुझे कैसे पता यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है? अगेन अ टॉपिक ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस दैट इज इंक्लूडेड इन टू योर सिलेबस, जो हमें करना होता है रीजनिंग में. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ, दिस साइड वी हैव ईस्ट एंड हेयर वी हैव वेस्ट. तो वी आर मूविंग देम इन द सेम वे. तो 6 किलोमीटर्स टुवर्ड साउथ गया, वी मेक अ एरो सो वी कैन नो लेफ्ट राइट, हमें पहचानना आसान हो जाए. देन ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, फर्दर ट्रेवल 9 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो और नीचे चला गया 9 किलोमीटर्स. एंड नाउ हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द हाउस. तो यहाँ पे इतना दूर चला गया है. सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम विच वी कैन यूज, राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन मेक. तो दिस इज 6 एंड 9, 9 राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है हमने. तो सामने ये रेक्टेंगल बनता है हमारा. 9 + 6 15 हमारा परपेंडिकुलर हो गया. बेस हमारा रेक्टेंगल फेस 8 हो गया. हाइपोटेन्यूज होगा 15 का स्क्वायर 225 + 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट, दैट इज द हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम. So we got 289 square root of that answer gonna be 17. तो पहली बात तो मेरा आंसर 17 होगा. तो 13 और 17 आउट हो गए. और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, बिकॉज पूछा गया डायरेक्शन, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये डायरेक्शन मेरी वेस्ट है, ये साउथ है. तो यहाँ पर खड़े होकर अगर मैं नोटिस करूँ तो मेरी डायरेक्शन बनती है साउथ वेस्ट. तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2. दैट इज द आंसर वी हैव. वेरी इजी टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ेदार है, बट डिपेंड करता है कैसे पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, आप कहाँ पढ़ रहे हो. सो प्लीज़ इंश्योर व्हेन यू ज्वाइन एनी particular center or join any class, do take a demo or do look at some videos before you join anywhere. Let's go for the next one. 37. Number 37, find out which of the following answers completes the figure matrix. Now this was on visual reasoning series, missing series कह सकते हैं इसको हम लोग. जैसे मिसिंग नंबर होता है, मिसिंग फिगर है, पैटर्न बनाना है अपने को. नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर इफ वी क्रॉस चेक, लेट्स सी. यहाँ पर हमारे पास देयर आर 1 2 3 सर्कल्स, 3 लाइंस, 3 ट्राइंगल्स एंड 2 इट्स काइंड ऑफ स्विच वी हैव. सो 2 these two are same, there's no difference in this. And here we can have one addition and then there are 2. okay, यहाँ पर अगेन एंड दिस व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी, लेट्स सी. रो वाइज देखते हैं, बिकॉज कॉलम वाइज जब दोनों सेम हो गए हैं, दिस गिव्स अ फीलिंग कि ये कॉलम वाइज नहीं बल्कि रो वाइज होने वाला है. नाउ इफ वी सी दिस इज 3 2 एंड दिस इज 1. देयर वी गोना गेट 2, इट गॉट रिड्यूस्ड टू 1 एंड दिस ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड. यहाँ से ये भी रिड्यूस हुआ और ये भी रिड्यूस हो जाएगा. अब देखो इस क्वेश्चन के ना, अगर हम नोटिस करें
we can have multiple answers. There can be two answers. One, if I talk about, but again आंसर इसका जो होगा, ओके गुड, अगर दो आंसर्स की बात करें थर्ड और सेकंड में हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, बिकॉज अगर मैं नोटिस करूं कॉलम वाइज जाऊं तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 बन सकता है मेरा, ठीक है। और अगर मैं नोटिस करूं मेरा ये आंसर भी हो सकता, इन दो फिगर्स को अगर हम ऐड करें, लाइक दिस फिगर इज़ एक्चुअली, अगर हम नोटिस करें ये कैसे बना, इन दो फिगर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, 3 सर्कल्स 3 लाइन्स, ट्राइंगल, सिर्फ यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पर सिर्फ दिस पार्ट 3 लाइन्स इफ़ आई से वो कंबाइन करके बनाया जा सकता है। सेम केस यहाँ पर इफ़ आई से 3 लाइन्स को कंबाइन करके ये दोनों फिगर तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ नोटिस करें एवरीथिंग इज सेम, मुझे सिर्फ यहाँ पर इनमें दो फिगर्स लगाने हैं, एंड दैट इज़ इफ़ आई गो विद द ऑप्शन नंबर 3, वो वहाँ पर गलत हो जाता है। सो आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर 2 हेयर, क्योंकि यहाँ पे जो भी फिगर था हमने उसमें सिर्फ जो नीचे 3 लाइन्स ऐड करके जो स्विच बना रहे हैं काइंड ऑफ, वो हम बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स इफ आई गो विद दैट लॉजिक, माई आंसर गोना बी ऑप्शन नंबर 2, एंड इफ आई गो विद द सेम लॉजिक की कॉलम वाइज अगर हम आए तो शायद आंसर थर्ड हो जाए, बट वो यहाँ पर वैलिड नहीं होता। सो इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग, लेट मी एक्सप्लेन दैट वंस अगेन टू यू। हम इसको चल रहे हैं रो वाइज, बिकॉज कॉलम वाइज इट इज गिविंग मी अ प्रॉब्लम। So when we did crosswise, row wise, तो यहाँ पर जो फिगर है 3 सर्कल्स 3 सर्कल्स 3 लाइन्स 3 लाइन्स, सिर्फ ये वाला जो पार्ट मिसिंग था वो कंप्लीट कर रहे हैं। सो इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ बना देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, इन दो पार्ट्स को मिलाकर जो पार्ट इनकम्प्लीट नीचे उसको पूरा करके वो पार्ट यहाँ बनाया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर इनका पार्ट तो ऑटोमेटिक कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, शुड बी अ ब्लैंक वन, सो दैट मेक्स अ बेटर सेंस टू मी। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, अ क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर प्लेस 6:45, तो मतलब टाइम हुआ है 6:45, दैट मीन 6:45। व्हाट इज द करेक्ट टाइम शोन बाय अ क्लॉक? ना तो ये शॉर्टकट टू दिस, जब भी मिरर की बात करते हैं, मिरर में टाइम अगर देखें नंबर्स ना लिखे हों तो दोनों मिलके 12 बनाएंगे। तो अगर आपको मिरर टाइम पूछा जाता है 6:45, जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम 12 minus 6:45, the answer is 5:15, and that is in the option number 4. That is the answer which I get. I believe that is quite simple, बहुत straightforward था। नंबर 39, अगेन विजुअल रीजनिंग, दिस इज पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में क्या कर रहे हैं, पहले वो इस फोल्ड को इस तरह रेक्टेंगल की तरफ फोल्ड किया जा रहा है, फिर उस रेक्टेंगल को भी दोबारा से एक और रेक्टेंगल आइसोलेस रेक्टेंगल बनाया, ट्राइंगल बनाया जा रहा है, और उसके बाद आइसोलेस ट्राइंगल बनाया जा रहा है, एंड देन दे आर पुटिंग अ होल हेयर इन द सेंटर, हेयर एंड हेयर। तो जब इसको हम दोबारा ओपन करने वाले हैं तो एक तो ये वाला सर्कल मेरा पूरा हो जाएगा, ये वाला सर्कल पूरा हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ आ जाएगा, एंड दिस पार्ट विल बी हेयर। और जब दोबारा ओपन करेंगे सो दिस पार्ट विल कम हेयर, दिस सर्कल विल गेट कंप्लीट, दिस ऑल्सो विल गेट कंप्लीट, एंड दिस ऑल्सो विल कम हेयर, एंड दिस पार्ट विल कम हेयर, और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा। सो व्हाट गोना बी द आंसर इन दिस केस टू अस, वी गोना गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर 2। और इसको करने का एक और शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप वो देखना चाहो। आपको मालूम है इस कट में कितने बने हुए हैं, इनके सर्कल कितने बनते हैं। ये वाला सर्कल तो मुझे पता है पूरा होना ही होना है, यहाँ पर 1 सर्कल एंड 1 हाफ एंड हाफ 1 2 हो गया, तो जब यहाँ डबल करेंगे 2 × 2 4 हो जाएंगे टोटल मिला के, हाफ हाफ को भी ऐड करने के बाद, और 4 × 2 टोटल 8 सर्कल्स बनने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द सेंटर 1। तो 8 सर्कल्स मेरे सिर्फ इसी फिगर में है with the center 1 apart from center 1, so that is the answer। तो शॉर्ट ट्रिक भी किया जा सकता है और इसको विजुलाइज करके भी किया जा सकता है, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट नंबर 40th कहते हैं फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन लेटर, दिस इज अ मिसिंग नंबर पजल। अब इसमें क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दैट सेज, नाउ A से C, C F E I G, नाउ इफ आई राइट द नंबर्स हियर, दिस इज 1, दिस इज 3, this is 3, and this is 6, this is 5, this is 9, this is 7, so 1 plus 2, 3 plus 3, 5 plus 4, 7 plus 5, that means this should be 12, that means L आ जाना चाहिए, तो first and third option out। now when we talk about the numbers, नंबर का देख लेते हैं क्या हो रहा है, 5 plus 3 8, 8 plus 5 13, 13 plus 7 20 plus 11 सारे प्राइम नंबर्स हैं, plus 13, next should be plus 17, that means 61, option number 2 comes out to be the answer।
सो दिस वाज द प्राइम नंबर्स एडिशन। आगे चलते हैं 41। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्या होने वाली है, 3 से 6 दैट इज +3, 6 से 10.5 + 4.5, देन +6.5, देन +9, तो +1.5 +1.5 +3.5। नेक्स्ट क्या होने वाला है, लेट्स सी। इफ आई चेक द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, यहाँ 1.5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2.5 है, तो आगे चलकर आना चाहिए 1.5 2 2.5, तो नेक्स्ट 3 का डिफरेंस आना चाहिए, 9 + 3 12, तो 26 + 12 38, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है आपका। तो पहले तो हम डिफरेंस करके चेक किया हमने, बिकॉज नंबर्स काफ़ी क्लोज थे। डिफरेंस जब हमारा क्रैक नहीं हो रहा तो हमने डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी करके देखा, वहां से आई गॉट द आंसर। लेट्स गो फर्दर। नंबर 42। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो 40 स्टूडेंट्स थे, अंजलि's रैंक इज थ्राइस ऑफ अनीता। देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु रैंक वर्स देन दैट ऑफ अंजलि, तो मतलब अंजलि से नीचे 4 बच्चे हैं, तो अगर टोटल 40 में से 4 बच्चे निकाल दिए जाएं, दैट मीन्स अंजलि का टॉप से रैंक आएगा, नीचे 4 है, 36 सॉरी, तो अंजलि का रैंक आएगा 36, नीचे 37 38 39 40 वाले बच्चे, और उस तरह से अनीता का रैंक होगा उसका 1/3, दैट मीन्स अनीता इज 12th from the top, 12 into 3 36. Now what is Anita's rank in the class, that is 12, that is the answer straight away I have. क्वाइट इजी सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारा एक टॉपिक है रैंकिंग, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन और इससे भी टफ लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नंबर 43, इट सेज 6 people EHKMS and you are seated in a circle facing the center. Let's make a circle and there are 6 people, so let's, as I always say, जब भी सर्कल का क्वेश्चन आए मेक अ सर्कल, लाइन का क्वेश्चन आए मेक अ लाइन एंड देन ट्राई टू सी इट, विजुलाइज करो। अब यहाँ पर 6 लोग हैं, सबके फेस सेंटर है, एरो हमने सेंटर में बना दिया, तो EHKMS और U सिटिंग फेसिंग द सेंटर है, सर्कल में बैठे हैं। U and H इमीडिएट नेबर्स ऑफ M है, तो UH एक लेफ्ट पे बैठा है एक राइट पे, मुझे श्योर नहीं है। E इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन K एंड S, बट E के लेफ्ट पे K है या राइट पे ये भी नहीं पता, तो यहां से शुरू नहीं कर सकते। शुरू हमेशा करेंगे जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी वहां से। H इज द इमीडिएट राइट ऑफ S, नाउ दिस इज द डेफिनेट इंफॉर्मेशन की इमीडिएट राइट ऑफ S, तो लेट्स से S को हमने यहां बना दिया, H उसका इमीडिएट राइट हो गया, ठीक है। अब ऑप्शनल की बात चलते हैं। U एंड H आर इमीडिएट नेबर ऑफ M, तो U भी H का नेबर है और H M का नेबर है और H भी M का नेबर है, तो दोनों इसके आजू बाजू आएंगे। तो H मुझे पता था इधर आ नहीं सकता, तो M ने उधर ही जाना था। नाउ E इज द ओनली पर्सन बिटवीन K एंड S, तो K और S के बीच में सिर्फ E आएगा, तो यहाँ पर E इन द सेंटर ऑफ K एंड S, पजल सॉल्व्ड। द क्वेश्चन इज हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ U। इमीडिएट राइट ऑफ U अगर मुझे देखना है तो राइट ऑफ U कौन आएगा। नाउ U का फेस डाउन है, तो उसका जो राइट होगा वो इस तरफ होगा, दैट मीन द आंसर इज K। So the answer I get option number 3, that is the answer we get। ठीक है जी। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मैं आपको टॉपिक साथ साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इन टॉपिक को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इफ यू वांट डू रियली गुड इन द CUET GT टेस्ट। लेट्स गो फॉर द नंबर 44। अगेन विजुअल रीजनिंग से क्वेश्चन है। Find out which of the answer figure from the options can be formed using all the pieces given in the problem figure। तो इसको हम बोलते हैं फिगर कंप्लीशन का टॉपिक है ये हमारा। ना फिगर कंप्लीशन में मुझे उसने बोला कि सारे पीसेस यूज करने हैं आपको, तो मेरे पास फिगर पीसेस में क्या है, 2 सर्कल्स, 2 डॉट्स, एक V और 3 कर्व्स। तो पहली बात मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर डॉट्स नहीं है सेकंड ऑप्शन में, तो ये फिगर आउट हो गया। इसमें कर्व 3 नहीं है, इसमें मेरे पास सब, इसमें 4 कर्व आ गए, तो ये भी आउट है, दैट मीन दिस फिगर कैन बी मेड स्ट्रेट अवे माय आंसर, एलिमिनेशन। गेटिंग अ पॉइंट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है CUET GT के, इट्स नॉट टफ, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, एंड यू गाइस कैन इजीली रॉक दिस एग्जाम। आगे चलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 45।
No keyboard is a mouse. Now this is a question of syllogism. Read the given statement and conclusion carefully, assuming that the information given in the statements is true even if it appears to be at variance and with commonly known fact. Because in तरह क्वेश्चन में cat is dog, dog is cat, lemon is orange, orange is lemon, इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां आपको इनको एज्यूम करना पड़ जाता है. तो वी हैव अ मेथड ऑफ वेन डायग्राम्स टू प्रूव इट. उसमें हम कैसे करते हैं? नो कीबोर्ड इज अ माउस, तो कीबोर्ड को हम अलग सर्कल में रखते हैं, माउस को हम अलग सर्कल में रखेंगे. फिर वो कहते हैं ऑल माउसेज आर कंप्यूटर, कीबोर्ड इज माउस, माउस एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऑल माउसेज आर कंप्यूटर्स, तो माउस के बाहर कंप्यूटर लगा दिया, सारे के सारे माउस कंप्यूटर हैं. ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, सारे के सारे कंप्यूटर को हमने लैपटॉप बना दिया. नाउ पहला कंक्लूजन मेरा आया, ऑल माउसेज आर लैपटॉप्स. क्या सारे के सारे माउस लैपटॉप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, सामने है मेरे. आई कांट अवॉइड इट, मैं इसको मना कर ही नहीं सकता. ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड्स. क्या सारे कंप्यूटर्स कीबोर्ड्स नहीं होंगे? देखो कीबोर्ड्स को मैं चाहूँ तो एम से दूर रखना है, मैं इस कीबोर्ड को यहाँ से हटाकर आई कैन पुट इट हेयर ऑल्सो, मैं इसको यहाँ तक ला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, आई कैन डू इट. बट मैं माउस के साथ मिक्स नहीं कर सकता इसको. तो मेरे माउस भी तो कंप्यूटर है, दैट मीन्स ये वाले माउस जो अंदर है ये कभी कीबोर्ड नहीं बनेंगे. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो राइट. सारे के सारे सम लिखा होता तो आंसर में कहता, मैं इसको गलत प्रूफ फिर भी कर सकता था, राइट भी प्रूव कर सकता हूँ, डिपेंड करता है मेरा क्वेश्चन क्या है. ये पूरा टॉपिक है सिलोजिज्म का, विच वन हैज टू अंडरस्टैंड. सो दिस आंसर स्ट्रेट अवे, दोनों के दोनों कंक्लूजन इसमें कंटिन्यू होने वाले हैं. बोथ आर राइट, दैट इज द राइट आंसर वी हैव. नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. बोर्ड मास क्वांट के ऊपर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड मास के ऊपर. बोर्ड मास आई थिंक सबको पता होगा, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हम सब लोग करते हैं जब छोटी क्लासेस में होते हैं. तो बहुत बेसिक, हम तो यहाँ पर आपको वी बोर्ड मास करवाते हैं एक्चुअली में, जैसे विंकुलम भी ऐड किया जाता है. अब इसमें सिर्फ मेरे पास डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो मुझे इनको ऐसे ही इसी रो में सोल्व करना है. पहले डिवाइड होगा, 24 डिवाइड बाई 4 इज 6, फिर मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 2 इज 12, फिर एडिशन होगा, 12 प्लस 8 20, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, 20 माइनस 4 16, तो 16 इज द आंसर आई गेट. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल, कुछ सेकंड्स में होने वाला. फिर ये कहता है द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट. नाउ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? अब जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सब 1 हो या बिल्कुल कम हो, सब और नंबर बहुत बड़े हो, सबसे बड़ा नंबर वही होने वाला है. 1/2, 2/3, 3/4, जितना ऊपर जा रहे हैं उतना नंबर बढ़ता चला जा रहा है. तो here we have 1/2, 8/11, 7/8, 7/9, 5/6. Now this 5/6 I can see is the biggest number here. And सबसे smallest number मुझे नजर आता है वो है 1/2. आप इसको डेसिमल में अगर करना चाहो तब भी करके देख सकते हो. 6, 5, this is 0.8 something. 9, 7, 9 into 8, 72, 0.7 something आएगा. 8 into 8. Okay, not 5/6, 7/8 is a bigger one. We have 7/8, we missed it. तो 7/8 is bigger than 5/6 even, क्योंकि इसमें नंबर और ज़्यादा बड़ा हो गया. So this is bigger, the greatest number आ गया. 8/11, this is again 0.7 something, 0.8 नहीं जा रहा, जबकि 870 this goes 0.8 something, 9 के पास जा रहा है. तो इन दोनों का डिफरेंस अगर चेक करें, let's take LCM, that is 8. So this is 4, this is 7. So the answer is 3/8. Option number 1, that is the answer I have for the question number 47. Right. Now the next question we have LCM HCF number system का question है. Now number system is very important topic. आपकी क्लासेस में मैथ्स में हम सबसे पहले उसी को टॉपिक कराने की कोशिश करते हैं, बिकॉज नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ये ऊपर वाला भी नंबर सिस्टम से था, 46 भी नंबर सिस्टम से, सब कुछ नंबर सिस्टम से आया हुआ है. The sum of LCM and HCF of two numbers is 854. LCM is 60 times the HCF. One of the numbers is 70. The other number is what? Now LCM and HCF of two numbers is 854. तो मतलब sum L plus H that is 854. फर्स्ट लाइन से मुझे ये समझ आ गया, ठीक है. सेकेंड लाइन कहती है LCM जो है 60 टाइम्स ऑफ HCF है, मतलब मैं LCM को कन्वर्ट कर सकता हूँ HCF में. दिस इज 60 टाइम्स, दैट मीन 60H प्लस H दैट इज इक्वल टू 854. दैट मीन 61H दैट इज इक्वल टू 854. नाउ इफ आई टेक द टेबल ऑफ 61, 61 इंटू 161, 24, 244, HCF कम्स आउट टू बी 14. तो मेरा जो HCF है दैट इज 14, और जो LCM है वो इसका 60 टाइम्स होगा. 14 इंटू 6 इज 84, तो ये 840 होगा.
वन ऑफ द नंबर इज 70. नाउ एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी, द प्रॉपर्टी सेज multiplication of both the numbers a into b that is equal to LCM into HCF. That means L into H that is equal to first number into second number. Now L मुझे मालूम है 840 है, H मुझे मालूम है 14 है, A मुझे गिवन है यहाँ पर 70. So A मुझे मालूम है यहाँ पर 70 है, into B मुझे निकालना है. 0 से 0 कैंसिल, 7 इंटू 2 14, 84 इंटू 2 दैट इज 168. दैट इज द सेकेंड नंबर आई हैव. वो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर मुझे साफ नजर आ रहा है. सो दैट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 48 यू गाइस. लेट्स गो टू द नंबर 49 नाउ. कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, कोई भी चीज समझ नहीं आती, कमेंट पे मुझे बता देना. रिप्लाई विद अनदर वीडियो, और अगर मेरी पिछली वीडियो में वो कंसेप्ट होगा आई विल give you the link in the comment section itself. So do comment and do like the video also, and do share with your friends so maximum people can take the benefit also. Look at the 49th question now. The present age of Harish is 8 times. Now this is the question from arithmetic. Ratio में भी कहते हैं हम, ratio proportion से question है. Problem on ages is the specific topic. Problem on ages. The present age of Harish is 8 times the sum of the ages of his two sons at present. तो let's say जो sum है उसके बच्चों का वो x है आज की डेट में, और हरीश की एज हो गई 8x, 8 टाइम्स ऑफ द सम. आफ्टर 8 ईयर्स के बाद ये 8x प्लस 8 हो जाएगा, और ये x प्लस 16, बिकॉज ये दो बच्चों का सम है, तो दोनों बच्चे 8-8 साल के बाद 8 साल और 8 साल 16 साल उनकी एज बढ़ जाएगी, तो x प्लस 16 हो जाएगा. आफ्टर 8 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स, सो 8x प्लस 8 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 16. अगर इसको सॉल्व करें वी गेट 8x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 32. So we get 8x minus 2x, that is straight away 6x. Let's write that. 6x is equal to 24. That means x is equal to 4. And now when the question is what is the present age of Harish? Harish was presently 8x, 8 into 4, 32. So the answer gonna be 32. That is the answer I get. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो इजी, अदरवाइज टफ. ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है. बोर्ड्स के बाद पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, पढ़ना पड़ेगा ताकि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए एंड वी कैन गो बियॉन्ड इट. जहां पर अभी हम हैं किसी स्कूल में हैं, लेकिन अब हमें अगले लेवल पे जाना है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है, तो वी हैव टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो. वेरी गुड. नंबर 50. In an examination, it is required to get 300 marks to pass. A student gets 225 marks. It is declared fail by 10% marks. अब देखो उस बच्चे के नंबर आए कितने, 225, और चाहिए कितने थे, 300 टू पास. मतलब कितने नंबर कम, 75 नंबर कम. नाउ 75 क्या है, 10% मार्क्स, फेल हुआ. तो 75 इज इक्वल टू 10%, दैट मीन्स 100% कितना होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 10. 100% इज इक्वल टू 750. तो टोटल मार्क्स कितने, 750. ऑप्शन नंबर 2 आंसर डन, खत्म. सो सिंपल. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर परसेंटेज. परसेंटेज का टॉपिक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आता है. दैट इज इन द इनिशियल क्लासेस वी डू दैट ऑल्सो, बिकॉज परसेंटेज बहुत सारे टॉपिक्स में काम आता है आपको. 51. इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ बॉयज ऑफ द गर्ल्स 3 स्टूडेंट. देखो रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. कितने क्वेश्चन है उसके, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, रेशियोज के क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे. तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाई लेवल, इन्होंने मॉडर्न मैथमेटिक्स नहीं डाला हुआ, ठीक है ना. द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज इज 42, दैट ऑफ द गर्ल्स इज 46. द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय होल क्लास क्या होगा. देखो जब मुझे पता है बॉयज 3:2 है, 3x और 2x है, तो मैं इसको 3 and 2 8 40, तो 24 16 लिखूं या 3 and 2 लिखूं, डज नॉट मेक अ डिफरेंस. क्यों डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, उसके लिए पूरा समझाना पड़ेगा. बट आप मान के चलो, जब आपको रेशो मालूम है कि बॉयज़ का एवरेज आपका 42 है, तो मान लो बॉयज़ भी 3 ही है. 42 इंटू 3, तीनों बॉयज़ की एज हो गई 126. ऐसे ही गर्ल्स जो है मान लो 2 हैं, उनकी एज है 46, एवरेज एज तो टोटल हो गया 92. दोनों को मिला के बनता है 218. अब टोटल हुए कितने, 3 + 2 5, 218 by 5. Answer comes out to be 43.6. This is the answer. This is the shortcut. I have done it in a one step lesser. अगर मैं चाहूँ तो इसको, अगर मैं आपको लंबा तरीका कराऊँ, लॉजिक से कराऊँ, डिफरेंट मेथड, जिसमें नॉर्मली हम पहले 3:2 40 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 3x + 2x 5x इक्वल टू बनेगा 40, x बनेगा 8,
मतलब बॉयज़ हो जाएंगे 24, गर्ल्स हो जाएंगी 16, तो 24 इंटू बॉयज़ का एवरेज 42 प्लस गर्ल्स दैट इज 16 उनका एवरेज 46, डिवाइड बाय करना पड़ेगा 40, दैट व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। तो अगर मैं छोटी सी चीज़ देखूँ, मैं अगर 8 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 8 इंटू 3 24, यहाँ से 8 इंटू 2 16 और यहाँ से 8 इंटू 5 40, आई गेट द सेम इक्वेशन विच आई डिड इन द बिगिनिंग। 42 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 46 को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 5 किया। सो दिस वी कैन अवॉइड यूजिंग दिस नंबर, और हम एक क्वेश्चन बड़े आराम से बहुत ईजी मेथड से बड़ी ईजी कैलकुलेशन के साथ कर सकते हैं। वाई टू कंफ्यूज आवर सेल्फ विद द लोड ऑफ कैलकुलेशंस। एग्जाम है, कंपटीशन है, टाइम कम है, जल्दी जल्दी करना चाहिए अपने को। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. The sum of three numbers 136, ratio between the first number and second number is 2:3. The first number 2, second number 3, between the second and third is 5:3. अब इन तीनों का मुझे फर्स्ट नंबर बताना है, तो इसको करने का रेशो का एक और क्वेश्चन है ना। रेशो में एक और चीज़ सिखाते हैं हम आपको, शॉर्ट ट्रिक। अगर मुझे 3 नंबर्स हैं A:B:C का अलग अलग रेशो मालूम है, जो इस तरह गिवन है 2:3 एंड 5:3, तो सबका एक लाइन में एक रो में कैसे आएगा। मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 10, मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 15 and multiply 3 into 3 9, you get the ratio of all of them in one line, relative ratio सबका आ गया। so 10 15 9 फर्स्ट नंबर पूछा है, 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 15 25 प्लस 9 34, 10 by 34 into 1 36, 34 into 4, that means the first number is 40. Question number 52, answer option number 2, that is the answer we get. इसको आप लास्ट मिनट की रिवीजन मान के भी करोगे ना एग्जाम से पहले, तो भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह शॉर्टकट्स किए जा सकते हैं। तो रिवाइज करते हुए एक बार जरूर देखना। इनिशियली देखोगे तो बहुत ही फायदा होने वाला है, बाय चांस ना देख पाओ, वीडियो ना आपके सामने आए, बाद में आए, तो मेक श्योर ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट टू इट, अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स आई एम एक्सप्लेनिंग ऑलरेडी, राइट। आगे चलते हैं। An item is sold for 504 after allowing 20% डिस्काउंट, मतलब MRP का 80% and still a profit of 5%, मतलब कॉस्ट प्राइस का 105%. The marked price is how much more than cost price, में डिफरेंस निकालना है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस भी निकालना है, मुझे मार्क्ड प्राइस भी निकालना है। तो मार्क्ड प्राइस जो होता है और ये मेरा सेलिंग प्राइस है, दैट मीन्स इसको इस तरह लिखिए आप लोग इजी समझने के लिए। सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट प्राइस, मतलब 80/100 होने वाला है। तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा, दैट इज एसपी जो मुझे गिवन है 504 मल्टीप्लाइड बाय 100/80 होगा। नाउ इफ आई कैल 20 इंटू 5 20 इंटू 4, दिस इज 4 इंटू 1 2 6, 126 इंटू 5, जो मेरा मार्क्ड प्राइस है वो आ गया 630 रुपीज़। एंड अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं ना, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इस केस में आएगा 105 बिकॉज 5% प्रॉफिट है। तो सीपी मुझे निकालना है, सेलिंग प्राइस गिवन है 504 इंटू 100 अपॉन 105, so this is 5 into 20, 5 into 21, 21 into 2 42, 8 remainder 84, that is 24, 24 into 2 हो गया 480। तो मेरा कॉस्ट प्राइस 480 है, डिफरेंस ऑफ मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस 150, तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 है। सिंपल, ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से आ गया, ये भी अर्थमेटिक है, मतलब अलजेब्रा नहीं नजर आ रहा मुझे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नजर नहीं आ रही, ज्योमेट्री नजर नहीं आ रही अभी तक। जो 2025 का एग्जाम था उसके अंदर भी हमने मैक्सिमम अर्थमेटिक ही किया है, मैक्सिमम अर्थमेटिक था, और अलजेब्रा में भी लीनियर इक्वेशन के इन 2 वेरिएबल्स 1 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस आए थे, बहुत हाई उसमें भी नहीं आया। तो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न जो जनरल टेस्ट का है बहुत ईजी है, इट्स नॉट दैट टफ। नंबर 54, A certain sum becomes 2356 in 3 years and 2660 in 5 years at simple interest। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो हर साल सेम रहता है। तो अगर 5 ईयर्स पे 2660, 2356 3 ईयर्स पे, तो जो डिफरेंस है इन दोनों का वो 2 साल का इंटरेस्ट होगा, सीधी सी बात। तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 304 रुपीज़। सो 304 रुपीज़ 2 साल में आया, तो 1 साल का इंटरेस्ट होगा 152 रुपीज़, राइट। दिस इज पर ईयर इंटरेस्ट दे आर गेटिंग। करने का शॉर्टकट बता रहा हूँ, फॉर्मूले से नहीं जा रहा हूँ। तो 152 रुपीज़ जो है वो मेरा इंटरेस्ट आया 1 साल का,
ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ सम, तो मेरा सम कितना था। अब जब 3 साल के बाद 2356 था, तो इसमें से अगर मुझे सम निकालना हो तो मैं 3 साल का प्रिंसिपल बाहर निकाल देता हूँ। 3 साल का प्रिंसिपल अगर मुझे बाहर निकालना है तो 152 इंटू 3 दैट इज 3 इंटू 2 6 3 इंटू 5 15 1456 रुपीज माइनस कर दो, द आंसर गोना बी 1900, दैट इज द आंसर आई हैव। ऑप्शन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 54। करने का शॉर्ट ट्रिक बताया मैंने आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। इन द स्क्वायर लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर 4k प्लस 6 एंड 7k माइनस 3, द एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ। अब देखो स्क्वायर इज ऑल्सो काइंड ऑफ रोम्बस, है ना, तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो सेम मैं यूज कर सकता हूं, बट मुझे पहले k की वैल्यू चाहिए। अब स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, ये भी पता है, तो अगर स्क्वायर्स, अब ये ज्योमेट्री का हमारा क्वेश्चन आ गया पहला, मेंसुरेशन का, क्योंकि एरिया भी आ गया ना इसमें, तो इसका मतलब डायगोनल अगर इक्वल होते हैं तो 4k प्लस 6 इक्वल टू 7k माइनस 3, दैट मीन्स 3k दैट इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई 3, दैट मीन्स 3 इंटू 4 12 प्लस 6 डायगोनल्स की वैल्यू हो गई 18। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला क्या है रोम्बस के एरिया का, क्योंकि स्क्वायर भी एक रोम्बस है, तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, स्क्वायर के दोनों डायगोनल बराबर, तो 8 से 9, 18 इंटू 9 इज 162, द आंसर स्ट्रेट अवे आई गेट 162, दैट इज द आंसर आई गेट। क्वेश्चन बहुत इजी है सीयूटी जनरल टेस्ट पैटर्न के, बशर्ते आपने पढ़ाई अच्छी की है, तैयारी अच्छी की है, जो एग्जाम्स के बाद आपको 1-1.5 महीना मिलने वाला है, अगर आप उसको अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी तरह एग्जाम किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंसुरेशन। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, सिलेंडर 3D फिगर है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम आपको गिवन है दैट इज 396। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, नाउ आर की वैल्यू मुझे मालूम है दैट इज 3, तो आई कैन फाइंड पाई एच दैट इज 396 डिवाइड बाय 9, that means 9 into 4 36, pi h की वैल्यू 44 हो गई, put that value here, 2 into pi h 44 and r की वैल्यू given है 3, that means 6 into 44, now 44 into 6 is 6 into 4 24, 2 remainder 264, the answer to question number 56, that is also option number 3, so that is also done straight away. तो mensuration is all about learning your formulas. If you are good with the formulas, आप बड़े आराम से mensuration के क्वेश्चन भी कर लेते हो। Let's go further. A tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the complete tank? अब देखो पूरा टैंक 6 घंटे में भरता है, हाफ टैंक 3 घंटे में भरेगा, सीधी सी बात है। सो 3 आवर्स लग गए, ठीक है, और टैंक मेरा जो है वो हाफ तक फुल हो चुका है। अब ये सिर्फ एक पाइप से था, देयर वाज ओनली वन पाइप, नाउ देयर आर 3 मोर पाइप्स। अब आप देखो एक पाइप, एक टैप सॉरी, अगर 6 आवर्स में फिल करती है, वन टैप फिल्स इट इन 6 आवर्स, तो अब 3 मोर मतलब टोटल 4 हो गई, तो 4 टैप कितने में फिल करेंगे, 6/4 आवर्स में, दैट मीन्स 2/3/2 1.5 आवर्स में। लेकिन ये पूरा टैंक है, हाफ तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसको अगर हाफ करना होगा तो 0.75 डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा, मतलब 45 मिनट्स, आंसर इज 3 आवर्स 45 मिनट्स, खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब बड़े लॉजिकल से क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल आईपीएम की तरह, नारसी मोंजी की तरह या क्राइस्ट की तरह भी नहीं है, इवन बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं। सीयूटी का पेपर बहुत ईजी मानता हूँ मैं, बशर्ते आपने तैयारी की हो, अगेन दैट इज़ द कंडीशन ऑलवेज आई से, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज इतना इजी नहीं है। 6.5 लाख बच्चा सीयूटी 2025 में उन्होंने फिल किया था, 6.5 लाख बच्चे, जीटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, लैंग्वेज टेस्ट 8 लाख, इंग्लिश और जनरल टेस्ट 6.5 लाख प्लस बच्चों ने फिल किया हुआ है, 2026 में शायद ज़्यादा निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तैयारी जरूर कीजिएगा इसकी। 58, a train running at a speed of 80 km/h crosses a 350 meter long tunnel in 36 seconds. The length of the train कितनी होगी? अब देखो एक ट्रेन है, अब बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो मैंने पहले यूज किया डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में, दैट वाज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम यूज करने वाला हूँ। अब मुझे पता है स्पीड, अब द 9th 10th क्लास में हम करते थे, जब km/h की स्पीड है
और यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड्स हैं, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाई बाय 5/18. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल्स बिकॉज इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी 1 आवर एंड आई डिड नॉट वांट इट टू बी 1 आवर. बट चलो कोई ना, 2-3 क्वेश्चन है, खत्म कर लेते हैं. तो इसको जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज द स्पीड आई गेट. नाउ स्पीड इनटू टाइम, द टाइम विच वी हैव बीन गिवन 36. नाउ दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होगा? 350 मीटर जो टनल है प्लस उसकी अपनी लेंथ. इसको अगर मैं सोल्व करूंगा 18 इंटू 2 36, दैट इज 80 इंटू 5 800, दैट इज इक्वल टू 350 प्लस L. That means L is equal to 800 minus 350, that is 450. So answer I get clearly, that is 450. This is the answer I get. Question number 58. तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं. अब मैंने डिस्टेंस में ऐड क्यों किया, अब ये हल्का सा फटाफट जल्दी से बता देता हूँ. लेट्स से दिस इज अ ट्रेन मूविंग, एक टनल के पास से निकलेगी. तो जब ट्रेन इसको क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ पूरी टनल भी क्रॉस करती है. तो टनल की लेंथ और ट्रेन की लेंथ को प्लस करना पड़ता है. दैट इज द टोटल डिस्टेंस इट कवर्स. ठीक है, दैट इज वाई 350 प्लस L लिया हुआ है हमने यहाँ पर. आई होप इट इज क्लियर. लास्ट 2 क्वेश्चन, लेट्स मेक इट इन रियली. क्वेश्चन नंबर 59. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 59. व्हाट डज इट से? इट सेज if 3 4 9 2 k 10 8 6 and k plus 6 is 8, the mean of these numbers, and mode of 2 2 3 2p 2p plus 1 4 4 5 and 6p is a natural number is 4, then the value of k minus 2p क्या होगी? Now if I add the mean का क्या फॉर्मूला होता है? mean का फॉर्मूला होता है sum of all the terms divide by number of terms, right? तो पहले सबका सम कर लेते हैं. the sum is 3 plus 4 7, 7 plus 9 16, 16 plus 10 26, 26 plus 8 34, 34 plus 6 40, 40 plus 6 46, 46 plus 3k, 2 is here 1 is here, divide by number of terms 1 2 3 4 5 6 7 8. So 46 plus 3k is divided by 8, mean is 8, that means this is equal to 8. If we cross multiply, we get 3k plus 46, that is equal to 64. This gives me 3k is equal to 18 and this gives me k is equal to 6. So the k minus 2p के अंदर I get k as 6 minus 2p. Now what is the value of p? Now p, if I check, p is a natural number and the mode is 4, that means 4 should have maximum frequency. Currently 2 and 4, they both have the maximum frequency of 2 each. Now if I put p as 1, it becomes 2, the p becomes the mode, so we can't afford that. If we keep p as 2, it becomes 4 and this becomes 5, that means I get mode as 4, that means p is 2. So 6 minus 2 into 2 4, the answer, the difference between the p k minus 2p, that is 2, the option number 3, that is the answer I get. The last question which we have now, that says, now before we go on the last question, again I request you guys to do subscribe the channel and do like the video, comment for in case of any doubts or what next pattern or what next the last year paper you want to discuss with us, so we can just come up with that also. The last question, let's do that also. In a triangle ABC, let's draw a triangle ABC. So let's say this is A, this is B and this is C. Point D and E are on AB. So D is here, E is here, respectively, such that DE is parallel to BC. So they both are parallel. If AD is 6, DB is 4, AE is 9, then what is the value of EC? Now this is the basic proportionality theorem, class 9th I believe. Now AD by BD, as per that, AD by BD should be equal to AE by CE. Now AD that is 6, BD that is 4, AE that is 9, EC should be X. That means this should be 3, 2, 3, 3. That means X should be 6. So my answer to this question gonna be 6. This ends the video. This ends the CUT GT 2024. I believe you guys have understood it and I'd really appreciate if you guys put some comments. If you have any doubts, write that, or please share it with your friends and do subscribe us so we can help maximum students.
because we believe in if you are a student, then we may help you. Thank you so much. Take care.